Hi students, welcome back to the lecture of electromagnetic induction. My name is Gautam Jain. Now you'll be thinking, sir, अभी क्यों बता रहे हो? ऐसे दिमाग में आया कि मुझे भी अपना नाम बता ही देना चाहिए. Just random. So anyway, here. So guys, the topic is electromagnetic induction. We are almost on the second last lecture of electromagnetic induction. Let's start with the topic of this is particular word first of all, and what this particular word means. इसका मतलब क्या होता है? So the word is induction. What do you mean by the word induction? Induction means without touching किसी में कुछ हो गया. Without touching किसी में कुछ हो गया. इसका मतलब क्या है? Let's see. First of all, the word electromagnetic induction means if there is a change in magnetic field in any particular coil or the wire, then there is going to be a induced current in it. इसका मतलब यदि आपने किसी भी एक से आपने इस मार्कर को ले लिया, ओके, या आपने पहले कंडक्टर को ले लेते हैं, एक कंडक्टर ले लिया आपने, इसके ऊपर में एक वायर बांध दिया है बहुत सारा. अभी ये जो कंडक्टर है सो कॉल्ड, मान लेते हैं ये एक पाइप है, ओके, एक ट्यूब है, हॉलो ट्यूब है, और आपने इस पे बहुत सारा आपने वायर बांध दिया और इस वायर को मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया. नाउ अभी जब आप इसको ऐसे रखोगे नॉर्मल में, ऑफ कोर्स गैल्वेनोमीटर कुछ भी रीडिंग नहीं शो करेगा. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट. सो इट्स अज्यूम देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो नहीं जाएगा. बट एज सून एज आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, अ परमानेंट मैग्नेट टुवर्ड्स इट, यदि मैंने इसके तरफ में लाया, इमीडिएटली गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करेगा. नाउ पॉसिबल रीजंस. सर गैल्वेनोमीटर इसलिए डिफ्लेक्शन शो कर रहा है क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो आयरन का बना होगा, और ये जो आपका बार मैग्नेट है ये मैग्नेट है, इस चक्कर में सर वो इधर उधर जा रहा होगा. नहीं, आप इस पर्टिकुलर पॉइंटर को कोट कर दो, प्लास्टिक का बना दो, स्टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंटर इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट. नाउ दैट सिंपली मीन्स दैट देयर इज समथिंग हैपनिंग as soon as I am trying to bring a particular conductor toward, a particular magnet towards this. What is happening? ये जो मैग्नेट था, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, मतलब जितना दूर लेके जाऊंगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम है. इसका मतलब जब मैं पास में लाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसके लिए इंक्रीज होगा या डिक्रीज? ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू इंक्रीज. राइट फ्रॉम ओवर हियर इट इज कमिंग लाइक दिस. So it is increasing. That means that there is change in the magnetic field. If there is change in the magnetic field, that only means one thing. There is going to be a current induced in the circuit. Current induced का मतलब अपने आप एक current बन जाएगा इस particular circuit के अंदर. Such kind of current which is produced because of the change in magnetic field with respect to a conductor will be known as electromagnetic induction. फिर से रिपीट कर रहा हूं, what do you mean by the word electromagnetic induction? Of course guys, the name of the topic is magnetic effect of electric current, so I have not written this. So just in the case if you got magnetic effect of electric current, it's guys only the topic which is electromagnetic induction which we are going to read today. So what is the definition of electromagnetic induction? Electromagnetic induction is that process in which the changing magnetic field or the change in magnetic field will result an induced current to be produced in the coils of a conductor. That's all. In simple word, जितनी देर तक आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहोगे किसी भी कॉइल के आजू बाजू, उतनी देर के अंदर वहां पर करंट प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा. That's all. Now let's understand it once again with this particular experiment. So what is this experiment? Now guys, this experiment is a beautiful experiment to make you understand कि आप खुद भी टेस्ला बन सकते हो. मजाक कर रहा हूं, नहीं बन सकते? Of course बन सकते हो guys. Now let's see how. Generation of electric current in a coil with the help of a bar magnet. So let us say suppose I have taken this particular conductor. Okay, यहाँ पर आपने एक कॉइल बांधा हुआ है, इसके ऊपर में बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं. सो ये सारे के सारे कॉपर के नंबर ऑफ टर्न्स हैं. ये आपने P एंड Q को अपने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है. व्हाट इज गैल्वेनोमीटर डूइंग ओवर हियर?
Galvanometer is a device which is used to measure electric current in a circuit. और गाइस क्योंकि बहुत छोटे छोटे माइन्यूट करंट्स को भी डिटेक्ट करता है, दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव टेकन गैल्वेनोमीटर. नाउ as soon as I am trying to bring this north and south towards this particular direction, the galvanometer का जो needle है, this will start pointing out. ये इस तरफ में क्या करेगा, पॉइंट करना चालू कर देगा, showing that an electric current is starting to flow through it. बट एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैंने इस मैग्नेट को इससे तो टच ही नहीं करवाया. जब मैंने इस मैग्नेट को इस पर्टिकुलर कॉइल से टच नहीं करवाया, बिना टच करे हुए आखिर इस पे करंट कैसे प्रोड्यूस हो गया? दैट मीन्स दैट देयर इज सर्टेन सोर्स ओवर हियर व्हिच इज चेंजिंग एंड ड्यू टू दिस देयर इज अ करंट इंड्यूस्ड इन इट. फिर से रिपीट कर रहा हूं, विदाउट टचिंग दिस बार मैग्नेट, ब्रिंग दिस बार मैग्नेट क्लोजर टू दिस कॉइल, डू नॉट टच दिस कॉइल. ओके, अदरवाइज आप बोलोगे सर आपने कॉइल को टच कर दिया इसलिए आ गया. नो गाइस, so without touching this particular coil, bring this bar magnet closer to this and you are going to see a deflection in the galvanometer needle. Now this means that as soon as you have brought this bar magnet towards this, that means that there is a change in magnetic field. क्यों? जब ये बार मैग्नेट कुछ यहां पर था तो खुद देखो, जो इसका जो नॉर्थ एंड जो वाला जो पार्ट था ये कुछ ऐसे में जा रहा होगा, राइट? ऐसे ही तो बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को. डोंट टच इट बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड्स डोंट टच ईच अदर. जब ये ऐसे में था तो इसका मतलब है, और यदि मेरे को बड़ा बनाना है तो समथिंग लाइक दिस, राइट? सो दैट मीन्स दैट इस जगह पर जब ये बार मैग्नेट था तो यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस पहुंच रहे थे वो काफी वीक थे. But as soon as you went from this position to this position, अब की बार क्या लगता है क्या हुआ होगा? Common sense guys, magnetic field would start increasing. If the magnetic field would start increasing, that means that there is a change in the magnetic field. यहाँ पर magnetic field कुछ कम आ रहा था इस जगह पर, जब मैग्नेट को यहाँ पर रखा तो magnetic field एकदम से क्या हो गया, बढ़ गया. So whenever there is going to be a change in the magnetic field, then a current is going to be induced in the circuit. And such kind of induced current will be known as electromagnetic induction. Okay. Now, अब देखते हैं इसके conclusions क्या क्या हैं. Suppose कर लो, अभी तो मैंने नॉर्थ और साउथ को यहां पर लेकर के आया हूं. Let's flip this off like this. साउथ एंड नॉर्थ. यदि मैं साउथ एंड नॉर्थ को, इस बार मैंने साउथ पोल को यहां रखा और इसको मैं इधर पे लेकर के आऊंगा, immediately what do you think is going to happen? As usual, there is again going to be a current induced in the circuit, but this time the needle will be pointing what? Like this. इस तरफ मूव करना चालू कर देगी. जबकि पिछली बार जब मैंने नॉर्थ साउथ रखा था, this. Okay. So that means that till the time you are going to change the polarity or even change the intensity of the magnetic field, there is going to be a current induced in it. That is this. Now, let us see the conclusions of this first experiment. So actually में आपने बिना इलेक्ट्रिसिटी लगाए हुए आपने केवल मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी. एंड गाइस दिस एक्सपेरिमेंट वर्क्स बिकॉज आई हैव डन इट. इट वर्क्स. आप एलईडी बल्ब कनेक्ट करोगे वो चलेगा, 100% चलेगा. करेक्ट. आगे देखते हैं. कंक्लूजन. The motion of magnet with respect to the coil generates an induced current in the coil due to potential difference induced in it. अब इन्होंने इतनी हेवी लैंग्वेज में क्या लिखा है? The motion of magnet, whenever you are trying to move the magnet, the motion of the magnet with respect to the coil, इस coil को यदि आपने इसी जगह पर रख दिया और इस मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हो, that means क्या होगा? जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं वो चेंज होती रहेंगी. जब पास में होंगी तो काफी ज्यादा हो जाएंगी, जब दूर में होंगी तो काफी कम हो जाएंगी. लाइक दैट. With respect to the coil generates an induced current. और ये जो करंट जो जनरेट होगा वो कहां पर होगा? इसके अंदर. टच करके हुआ क्या? नहीं. एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड का मतलब हो गया अपने आप से हो रहे. इंड्यूस्ड करंट. गॉट इट? इन द कॉइल ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड इन इट. इसका मतलब है यहां पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ होगा इस जगह पर और इस जगह पर, एंड दैट्स द रीजन व्हाई नाउ देयर इज अ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट.
सेकेंड, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन, अब ये जो वैल्यू कितना करंट प्रोड्यूस होगा ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने जब ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया, वी फाउंड आउट आप जितना बड़ा मैग्नेट या जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे उतना ज्यादा करंट चेंज होगा. दैट मींस दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द changing magnetic field will decide the quantum or the magnitude of the currents produced. Okay, let's move ahead. Speed of the magnet, ये 1942 के हिसाब से चले जा रहा है बेचारा, धीरे 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 धीरे. तो जो मैग्नेटिक नीडल भी होगा ये भी धीरे 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 धीरे. On the other hand, and if it starts to move like this much more faster, common sense the needle is also going to move like this. That means that the amount of current, or sorry, the faster this particular motion of this magnet is, and higher would be the current. Next, number of turns. As I told you guys, number of turns पर भी डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी या कम. यदि आपने इतनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई है कंपैरेटिवली कम, इतना सारा कॉइलिंग कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ह्यूज, एंड द करंट विल आल्सो बी हाईली प्रोड्यूस्ड. नाउ प्लीज रिमेंबर गाइस, whenever I am talking about that, when you are bringing the north pole towards this particular part, the galvanometer will be deflected towards this side, वो एक तरफ में डिफ्लेक्ट करेगा. बट जब आप इस मैग्नेट को फ्लिप करके साउथ को इधर पे लेकर के आओगे, मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली, और सॉरी गैल्वेनोमीटर एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा. इसका मतलब है when you change polarity of the magnet, the direction of the current does what? Changes. Got it? आगे बढ़ते हैं. Let's move it on to the next part. Now this means guys, this is a technology of future. आप केवल एक मैग्नेट को बगल में लाओगे और करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. इसका मतलब यदि कोई दिन भर बैठ करके मैग्नेट को आगे पीछे करने में लगा हुआ है, you are going to produce electric current. Now since you are generating electric current, and that's the reason why this particular principle is used in what? In generator, right? याद करो guys, कल जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा था तो what was the underlying principle being used in electric motor? इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर we simply saw what? The Fleming's left hand rule, and what was that? If a current is cutting this magnetic field with an angle of 90 degrees, then there is going to be a force developed. इस बार इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर यदि आपने किसी ढंग से फोर्स देना चालू कर दिया, फोर्स कैसे दोगे, आगे पीछे ले जाने के अंदर यदि आपने किसी ढंग से फोर्स देना चालू कर दिया, एंड व्हाट इफ देयर इज दिस मैग्नेटिक फील्ड, देन कॉमन सेंस व्हाट इज द थर्ड थिंग, करंट इज गोइंग टू गेट प्रोड्यूस्ड. इसका मतलब यदि मेरे पास में किसी ने भी मुझे यदि फोर्स दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, तो मैं क्या प्रोड्यूस कर सकता हूं, करंट. बट सर व्हाई आर यू यूजिंग योर राइट हैंड, कल तो आपने लेफ्ट हैंड बोला था. नाउ हियर कम्स द पार्ट, बट बिफोर देन दैट लेट्स मूव ऑन टू द एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. लेट्स मूव अहेड. एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इज अ बिट डिफरेंट. सर यहां पे आपने कंडक्टर लिया था और कॉपर वायर था, तो कुछ हुआ होगा अंदर सर. यदि सर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है, टेक अ इंसुलेटर. और सर अब करके दिखाओ, नो प्रॉब्लम. टेक अ इंसुलेटर. नाउ दिस सो कॉल्ड द बार रॉड, ये जो हॉलो रॉड है, दिस इज एन इंसुलेटिंग रॉड. ओके, सो ये कोई प्लास्टिक का एक पाइप टाइप का पीस है. इसके ऊपर में मैंने बहुत सारे कॉइल्स लगा दिए. नंबर ऑफ टर्म्स देख रहे हो, बहुत सारे हैं. ऐसे ही मैंने एक और जगह पर बहुत सारे कॉइल्स बांध दिए हैं. इसका जो पॉजिटिव एंड है उसको गैल्वेनोमीटर में, जो नेगेटिव एंड है वो भी गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट कर दिया. ये वायर इससे बिल्कुल भी टच नहीं है. सो डोंट बी अंडर दैट इल्यूजन कि सिंस ये वायर इसको टच कर रहा है एंड दैट इज द रीजन व्हाई करंट कुछ यहां पर चला गया होगा, क्योंकि ये बीच में क्या है, प्लास्टिक. सो ऑफ कोर्स नहीं जाएगा. एंड दिस पर्टिकुलर कॉइल इज आल्सो कनेक्टेड थ्रू व्हाट, थ्रू द बैटरी. यहां पर एक की डाल देते हैं, की switch. Now as soon as you are going to switch on the circuit,
होगा क्या? Immediately this is battery, direct current will start flowing through the coil. अब जब ये डायरेक्ट करंट यहां से फ्लो करेगा, इसका मतलब आपको मालूम है whenever there is a current which is flowing in the circuit, magnetic field will be induced, right, or produced. So इसका मतलब है जब भी कभी करंट यहां से जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? प्रोड्यूस होगा. शॉकिंगली यदि आपने इस सेटअप में यहां गैल्वेनोमीटर लगाया तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे आप देखोगे गैल्वेनोमीटर का निडल क्या होगा? माइन्यूट माइक्रो सेकेंड के लिए डिफ्लेक्ट होगा and then will come back to what? Zero. That's shocking. अरे लेकिन मैंने तो करंट यहां दिया ना, तो ये गैल्वेनोमीटर को क्यों दौरा चढ़ रहा है बेचारे को? So why is this particular galvanometer, twisting in such a way? So the question is, why this particular needle is moving when the coils are not attached to each other? That simply means that there is something happening with this coil, and this coil is also getting disturbed. Let's see now actually what is happening. As soon as the moment you switched on the circuit, what actually happened? Current would rush over here from higher potential to the lower potential. Current means, of course, the flow of electrons, but electrons will be flowing from this to this, but the electrical field will be set up from this to this. So that means that the direction of electrical field will be from this to this. And there is going to be a potential difference which is going to be induced, right? जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, immediately huge amount of current will start flowing in this direction. Now since आपने number of coils भी इतने बढ़ा दिए हैं, that simply means only one thing, and what is that? That is that the magnetic field will be hugely increased. So magnetic field बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. Now जब ये magnetic field इतना बढ़ जाएगा, और लेकिन ये केवल टेम्पररी होगा स्टार्टिंग के अंदर, so that means that this particular magnetic field, because this is changing. सर लेकिन चेंज क्यों हो रहा है? चेंज इसलिए हो रहा है बिकॉज अभी आपने स्विच ऑन किया एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट इज नाउ जस्ट स्टार्टिंग टू फ्लो. जब करंट एकदम नॉर्मल हो जाएगा, आपने स्विच चालू ही रखा तो कुछ नहीं होने वाला, बट एज सून एज यू आर गोइंग टू स्विच ऑन द सर्किट, immediately the current starts flowing. As soon as the current starts flowing, there is this magnetic field which will also start developing. जब magnetic field develop होगा तो starting में क्या होगा? ज्यादा, और बाद में जब करंट लगातार जाना चालू हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एकदम कम, राइट? दैट मीन्स दैट देयर इज दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल स्टार्ट इंड्यूसिंग अ करंट इन दिस सर्किट. ऐसे ही तो हुआ. अगेन रिपीटिंग, एज सून एज यू स्विच ऑन द की, द करंट विल स्टार्ट मूविंग ओवर हियर. पहले एकदम ह्यूज अमाउंट ऑफ जाएगा, बाद में नॉर्मल जाना चालू हो जाएगा. जब ये ह्यूज अमाउंट ऑफ जाएगा, उसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ व्हाट? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, विदाउट इवन टचिंग द कॉइल, देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर आल्सो. इफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंज्ड ओवर हियर, दैट मींस दैट यहां पर एक करंट और क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड. दैट मींस जस्ट बिकॉज इस कॉइल के अंदर मैंने करंट जा रहा है, राइट, उसकी वजह से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हुआ. दिस मैग्नेटिक फील्ड विल रिजल्ट इनटू अ चेंजिंग करंट ओवर हियर, एंड यू विल सी अ गैल्वेनोमीटर गेटिंग डिफ्लेक्टेड. नाउ दिस इज समथिंग यूनिक सर. मैंने केवल इसमें करंट दिया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जाएगा. उस स्टार्टिंग वाले पॉइंट के अंदर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, इमीडिएटली यहां पर एक करंट इंड्यूस हुआ. केवल उस सेकेंड के लिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिया. अब जैसे ही जब करंट नॉर्मल हो जाएगा जाना, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रही. जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहे तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पे करंट जनरेट नहीं होगा, एंड गैल्वेनोमीटर विल रिटर्न बैक टू द पोजीशन ऑफ जीरो. Now this leads to somewhat a very funnier kind of experiment again. मान लो आपने नॉर्थ एंड साउथ को अंदर और बाहर कर रहे थे, तो यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा था. सपोज करो यदि मैंने नॉर्थ एंड साउथ पोल को यहीं रख दिया, मैग्नेट को यहीं रख दिया, और इस कॉइल को अंदर और बाहर कर रहा हूं, अब क्या लगता है, क्या करंट जनरेट होगा? ऑफ कोर्स यस. व्हाई? सी, बिकॉज द कॉइल इज नाउ मूविंग. इफ द कॉइल इज मूविंग, दैट मीन्स द फ्लक्स, magnetic flux associated with this coil will also start to what? Move. And that's the reason why there is going to be a current which is going to be induced.
इन सिंपल वर्ड्स, जब तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहोगे, इलेक्ट्रिक करंट विल कीप ऑन गेटिंग प्रोड्यूस्ड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. गॉट इट? ओके. Let's see the conclusion of this experiment. When a current through coil 1 is changed by stopping or starting, understand guys, जब आप केवल स्विच को स्टार्ट करोगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट. जब आप स्विच को बंद करोगे, वापस से करंट एकदम से कम होना चालू हो जाएगा. केवल तभी करंट चेंज होगा, बिकॉज एक बार करंट चालू हो गया फ्लो करना, फिर तो वो कांस्टेंट हो जाएगा. बट केवल स्टार्टिंग में, ये देख रहे हो चेंज हो रहा है, एकदम क्लोजिंग के टाइम पे एकदम चेंज हो रहा है. दैट्स द रीजन. सो व्हेन अ करंट थ्रू कॉइल 1 इज चेंज्ड बाय स्टॉपिंग और स्टार्टिंग, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल नंबर 2. ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस और इंडक्शन का वर्ड हमेशा बिना टच करी हुई कॉइल पे ही आता है. यही है वो कॉइल बिना टच करा हुआ, क्योंकि बैटरी को तो मैंने यहां से टच कराया हुआ है. ओके. सेकेंड, एज द करंट इन कॉइल 1 चेंजेस, क्योंकि करंट कॉइल 1 में चेंज हुआ है एकदम से इनिशियल, ओके, चेंजेस, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट आल्सो चेंजेस एंड दस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कॉइल 2 आल्सो चेंजेस. अब क्योंकि आपने यहां पर करंट को डिफर किया है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर चेंज हो गया है. दैट्स द रीजन. थर्ड, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कॉइल 2, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, इसकी वजह से इंड्यूस करंट कहां प्रोड्यूस होगा, यहां पर. एंड दैट्स द रीजन व्हाई द गैल्वेनोमीटर विल स्टार्ट शोइंग व्हाट, डिफ्लेक्शन. नाउ लेट्स मूव समवेयर ओवर हियर एंड लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड व्हाट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. नाउ प्लीज रिमेंबर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आता है ऑफ कोर्स फोर्स के लिए, एंड बट दैट इज नॉट फॉर इंड्यूस्ड करंट. वो मैग्नेट, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड उसके लिए फोर्स में आएगा. बट जब भी कभी आप बात करोगे इंड्यूस्ड करंट, जहां पर बिना कुछ टच कराए हुए दूसरे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है एंड उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, उसके लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. सो राइट हैंड रूल होगा इन केसेस के लिए, और इन सिंपल वर्ड, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल, जनरेटर के लिए वेदर इट इज AC और DC, राइट हैंड रूल. गॉट इट? Now let's see. So what you need to do for Fleming's right hand rule, as usual, stretch the thumb, the forefinger and the middle finger in 3 different directions. As usual, father, mother, child. मतलब force, magnetic field and current. So whenever you are showing it like this, that means the magnetic field is going from where to where? From north to south. North to south, upwards क्या, force, and this is the case of what, current. Now this means जनरेटर में होगा क्या आपके हिसाब से, जनरेटर के अंदर आप जानबूझ करके फॉसिल फ्यूल डाल करके, एज इन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन डाल करके आप क्या प्रोड्यूस करते हो, फोर्स. ऑयल गर्म होता है, बर्न होता है, बर्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड एंड एवरीथिंग गेट रिलीज्ड एंड फ्लैग घूमना चालू कर देगा, फोर्स. नाउ दैट पर्टिकुलर फोर्स आपने लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अंदर नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट होगा या मैग्नेटिक पोल्स होंगे. अब जब दो चीजें आपने ऑलरेडी जनरेटर में दे दिया, तो क्या चीज प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड जनरेटर? जनरेटर इज दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड विल जनरेट व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी. बट ये इलेक्ट्रिसिटी कब तक जनरेट करेगा, जब तक ये कॉइल घूमता रहेगा. कॉइल आपने बंद कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, चेंज नहीं हो रही है, करंट नहीं होगा प्रोड्यूस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस, बाय द वे, लेट्स सपोज मैं केस ले लेता हूं. सपोज करो मैंने स्विच को ऑन किया, क्या डिफ्लेक्शन आएगा, यस. व्हाई? Because all of a sudden a spike in current, change in current, change in magnetic field, induced magnetic field, induced current. Okay. मैंने जब stop किया, again decrease in current. Decrease in current will lead to what? Changing magnetic field in coil 2. Changing magnetic field will lead to current in coil 2. Changing. So केवल start और बंद होने के टाइम पर ये क्या करेगा? Deflection देगा. जब ये नॉर्मल करंट आपका चालू हो चुका है जाना, अब डिफ्लेक्शन देगा क्या? नहीं, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड. ऑन द अदर हैंड, व्हेन आई एम टॉकिंग ओवर हियर, सपोज मैंने इस
मैग्नेट को यहीं छोड़ दिया और कॉइल को आगे पीछे कर रहा हूं, तो क्या मुझे करंट गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा? यस। मान लो मैंने इस कॉइल को ऐसे में रख दिया, फ्लिप ओवर कर दिया, क्या मुझे डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में मिलेगा? नो, डायरेक्शन विल चेंज, राइट? जब मैंने पोलैरिटी चेंज कर दिया, कोर्स इट विल चेंज, सो लाइक दैट. So this is, by the way, Fleming's right hand rule. So what does Fleming's right hand rule says? If you are going to stretch the forefinger, the thumb and the middle finger perpendicularly to each other, then the thumb will be giving you the direction of force or the movement of the conductor or motion of the conductor. This will be showing you the magnetic field traveling from north to south, and this will be showing you the conventional electric current ki direction, which is the positive field direction. So this would be all from my side, guys. Love you all. Take care. Enjoy. And if you do like the video, then do subscribe to the channel. And if you do not like at all, then please unsubscribe from the channel and subscribe somewhere else, or don't subscribe at all. And if you want to share this video, you can, because YouTube has given it free of cost. So do whatever, guys, you feel like doing. Enjoy, take care, bye, and always love your parents, guys, please. Thank you. And yeah, by the way, I'm so sorry, I just forgot. So when I asked you to get up at around 6 o'clock, then it doesn't mean that you get up at around 5:45 and then sleep back again. Dude, come on. I mean, that's shocking. Anyway, guys, chill and keep smiling. Bye.